Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स that we are discussing today. So the first article is regarding the governor. So यहाँ पर बात करेंगे गवर्नर के ऊपर, गवर्नर होते कौन है, क्या है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, और ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो कंट्रोवर्सी क्या है, उसकी जो बेसिस है उसे समझने की कोशिश करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is regarding the appointment of Chief Justice of India. So यहाँ पर बात करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी बॉडी है नॉन एज द कॉलेजियम सिस्टम, उस कॉलेजियम सिस्टम को कैसे फॉर्म किया गया था, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या मेजर जजमेंट्स है, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग द इंटरपोल. सो यहाँ पर बात करेंगे इंटरपोल है क्या, क्यों फॉर्म हुआ था, क्या काम है, उसमें कौन से क्राइम्स हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is regarding the Indo-Asia Defense Dialogue. So यहाँ पर बात करेंगे इंडो अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे फॉर्म हुआ था, इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं डिफेंस डायलॉग के बारे में, डिफेंस कॉपरेशन से रेस्पेक्टिवली बात करेंगे, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. And the fifth one is on the multi-dimensional poverty index. So यहाँ पर बात करेंगे MPI के ऊपर, MPI क्यों बनाया गया है, MPI में कौन से पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर का कितना वेटेज है, इसे देखेंगे in our fifth article. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the governors. So यहाँ पर there is a controversy underlying the constitutional provisions or constitutional discretions of the governor. But before going into the controversies, in controversies में हमें जाना नहीं है, but the basis of this controversies, that is something interesting. So उसे हम लोग देखेंगे from UPSC's perspective in today's analysis. So let's start with the basics. So the role of the governor is quite similar to that of the president of India. जो president of India के जो roles हैं, जो functions हैं, that is more or less similar to the governor. President central level पे करते हैं, governor state level पे करते हैं. That is the difference. Now there is a dual control or dual role of the governor. So the first role is its constitutional duty, that is that he is the head of the state. So he is the executive head of the state. That is the first role that the governor has to fulfill. There is another role of the governor, that it is the intermediary or the interlocutor or the connector between the union and the state. So union और state के बीच में he acts as a vital link. So that means the governor has a dual role. Another aspect here is the Article 153. So Article 153 ये कहता है कि there shall be a governor for each state. That means हर एक स्टेट के लिए एक एक गवर्नर होना चाहिए. But you guys know it is not the case. काफ़ी सारे states जो हैं कोलैबोरेट करके there is one governor, या कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी के भी कॉमन गवर्नर हैं. So this change is included by the 7th CAA. So 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये चेंज लाया गया कि यहां पर वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. सो इसीलिए वी आर सीइंग कॉमन गवर्नर्स एज ऑफ टुडे. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो गवर्नर के काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस नहीं हैं प्रिस्क्राइब. So यहाँ पर there are basic qualification. For example, the first qualification that he should be a citizen of India. Second one, he should be at least 35 years of age. The next one is that he should not hold any office of profit. And the fourth one is that he should not be a member of either House of the Parliament या House of the State Legislature. So this is the basic qualification of the governor. So you can understand कि governor के लिए कोई specific qualification prescribed नहीं है in the constitution. With that, now let's see the other articles surrounding the governor. So यहाँ पे first article is the Article 163. So Article 163 के clause 1 में ये कहा गया है कि there shall be a council of ministers headed by the CM to aid and advise the governor. That means एक CM होगा जो कि council of ministers के head करेंगे, जो कि aid and advise करेंगे governor को. But यहाँ पर there is an exception. The exception here is कि insofar as he is by under the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. That means यहाँ पर गवर्नर के जो discretionary positions हैं, discretionary powers हैं, that is exclusively given, that is explicitly given in the constitution. For example, प्रेसिडेंट के टाइम पे दिस डिस्क्रिशनरी पावर्स वेर इम्प्लिसिट, दे आर नॉट एक्सप्लिसिट, बट गवर्नर के टाइम पे दे आर एक्सप्लिसिट. आर्टिकल 163 में उनके यहाँ पर इट इज मेंशन कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए चीफ मिनिस्टर होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होगा. बट एट द सेम टाइम in some cases governor can exercise his functions based on his discretion.
और अगर सेकेंड क्लोज में ये कहा गया कि और अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्क्रिशन कौन से केसेस में करेंगे, कौन से केसेस में नहीं करेंगे, देन उन डिसीजंस जो होंगे जो कि डिस्क्रिशन के ऊपर होंगे, इन दैट केसेस जो डिसीजन ऑफ गवर्नर जो होगा वो फाइनल होगा। The third point to note here is in the third clause of Article 163. So third clause of Article 163 ये कहता है कि जो aid and advice हैं जो कि Council of Ministers headed by the CM देते हैं गवर्नर को, that aid and advice cannot be inquired. So it shall not be inquired in any court of law. So these are some of the specifications given in Article 163. So first controversy is regarding this discretion. यहाँ पर जो discretion है वो क्या है discretion? यहाँ पर जो aid and advice है क्या वो bounded है, क्या वो binding है कि नहीं? That is an first issue. The second issue is coming out of Article 164 Clause 1. अब Article 164 Clause 1 में ये कहा गया है कि the Chief Minister shall be appointed by the Governor and other ministers shall be appointed by the Governor on aid and advice of the Chief Minister, and the ministers shall hold the office during the pleasure of the Governor. So यहाँ पर ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के टाइम पे कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर के अलावा जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को, जो कि उस एडवाइस के बेसिस पर मिनिस्टर को रखेंगे। एट द सेम टाइम इट इज मेंशन कि मिनिस्टर जो होंगे वहां पर पर्टिकुलर टर्म के लिए नहीं होंगे, वहां पर देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, बट मिनिस्टर जो होंगे तब तक ही ऑफिस में रहेंगे जब तक उनके पास प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। नाउ हियर इशू इज कि प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर कब विड्रॉ कर सकता है? क्या गवर्नर आर्बिट्रेरली विड्रॉ कर सकता है? So that is the question here. So constitutional experts की माने, so this pleasure of the governor cannot be withdrawn arbitrarily. वो arbitrarily withdraw नहीं कर सकते। यहाँ पर governor can only withdraw the pleasure if he or she is advised accordingly from the CM or the Council of Ministers. So Council of Ministers headed by the CM अगर एडवाइस करे गवर्नर को कि आप इस आदमी को निकाल दीजिए जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, ओनली इन दैट केस गवर्नर कैन विड्रॉ द प्लेजर. सो विदाउट दिस एड एंड एडवाइस गवर्नर कैन नॉट. दैट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स विजन. सो विद दैट अब बात करते हैं कौन से है डिस्क्रिशनरी पावर्स. सो हर एक पर्सन की जब डिस्क्रिशनरी पावर्स बात करते हैं वी कैन बाइफर्केट इट फॉर बेटर क्लैरिटी. गवर्नर की बात करें सो अगेन वी कैन बाइफर्केट. सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स हियर. द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, दैट मीन्स वैसे डिस्क्रिशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में मेंशन है. सेकेंड टाइप इज द सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब जो कि सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट के हिसाब से आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. So for example, the first discussion here is कि governor can reserve a bill for consideration of the president. So किस bill को reserve करना है, that is a discretion of the governor. Second constitutional discretion here is कि governor can recommend the decision of president's rule in any state, which is given in article 356. So आपको पता होगा कि आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि गवर्नर अगर देखे कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो डैमेज है, वो वर्किंग नहीं है, देन गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन कैन प्रेसिडेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट. सो ये जो रिकमेंडेशन है दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. Another discretionary power of the governor is कि governor can as the CM of the state for information regarding administrative or legislative matters. ये भी it is a constitutional discretion of the governor. Another discretion is कि governor can get additional charge for neighboring UTs also. और जिस UTs को यूनियन टेरिटरीज के ऊपर उनका additional charge आता है वहाँ पर जो discretionary power है वो भी लागू किया जाएगा. Another discretionary power, particularly the constitutional discretionary power, is with regards to the mineral explorations. For example, कुछ states हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. So यहाँ पर there is a tribal district council. अब इन स्टेट्स में अगर आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है देन इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को आपको रॉयल्टी देना पड़ता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है. अब ये पर्टिकुलर अमाउंट कितना होगा दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. गवर्नर डिसाइड करते हैं. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस दैट द गवर्नर हैज. अब देखते हैं कि सिचुएशनल डिस्क्रिशंस कौन से हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं. द फर्स्ट डिस्क्रिशन इज दैट कि गवर्नर प्लेस अ रोल इन डिसाइडिंग द सीएम ऑफ द स्टेट when no party has won the majority votes. अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर none of the parties जिन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए none of the parties has got the majority votes, in that cases कौन से पार्टी को जिताना है और कौन से पार्टी को रूलिंग पार्टी बनाना है और किस पार्टी के मेंबर को आप सीएम बनाओगे, दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर एंड दिस इज अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन. दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है.
एट द सेम टाइम अगर ऐसा कोई केस अराइज होता है इन एनी टाइम जहां पर जो सीएम का पोस्ट है वो सडनली वैकेंट होता है बिकॉज ऑफ द रेसिग्नेशन ऑल्सो और बिकॉज ऑफ द डेथ, इन दैट केसेस ऑल्सो किस पर्सन को चीफ मिनिस्टर बनाना है, दैट इज अनदर सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। इसके साथ साथ द गवर्नर कब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल टू शो द कॉन्फिडेंस, इन दैट केसेस कब विड्रॉ करना है, दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। सो देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस and situational discretions, but the issue here is because of the broad discretionary powers of the governor। जब किसी एक पर्सनैलिटी के पास, किसी एक ऑफिस के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, then again there is a issue of misuse। मिसयूज होने के टेंडेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इस मिसयूज को देखकर, ओवर दियस मिसयूज और एलिगेशंस को देखकर काफ़ी सारे रिकमेंडिंग बॉडीज़ ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब देखते हैं कौन से रिकमेंडेशंस हैं। सो रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द गवर्नर्स रोल। The first recommendation is regarding the appointment and removal of the governor। So पुंची कमीशन ने ये कहा था कि अपॉइंटमेंट के केसेस में there should be the aspects of chief minister। चीफ मिनिस्टर का भी राय लिया जाए और रिमूवल के लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर दिया जाए। सो दैट इज समथिंग द पुंची कमीशन स्टेटेड इन द ईयर 2010। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल 356 की बात करें, सो यू नो कि आर्टिकल 356 के हिसाब से गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल के लिए इन अ केस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज फेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेलियर हो, वहां पर फेल हो, देन गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, वी आर जस्ट एक्सप्लेन। सो वहां पर जो यूज है इट कुड बी मिसयूज, वो मिसयूज किया जा सकता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मिसयूज किया जा सकता है। तो इसीलिए ओवर दियस वेरियस बॉडीज ने, पुंची कमीशन ने, सरकारी का कमीशन ने, चेल्लैया कमीशन ने, सेकंड एआरसी ने, काफी सारे रिकमेंडेशन बॉडीज ने ये पर्टिकुलरली कहा है, टुगेदरली वो निकल के सिमिलरली उन्होंने कहा है कि आइदर आर्टिकल 356 को अमेंड किया जाए या कुछ सेफगार्ड दिया जाए। सो दैट इज समथिंग विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 356। अनदर रिकमेंडेशन की बात करें दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर 356। सो सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉम्बे जजमेंट ऑफ 1994 ये कहा था कि इट हैज पुट एन एंड टू द आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द हॉस्टाइल सेंट्रल गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि द वर्डिक्ट रूल दैट द फ्लोर ऑफ द असेंबली दैट इज द ग्राउंड हाउस, द लोकल हाउस, द लोअर हाउस जो है, जो आपके विधानसभा है, वहां पर दैट इज द फ्लोर ऑफ द असेंबली विच इज द ओनली फोरम दैट शुड टेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज गवर्नर अपने हिसाब से डिसमिस नहीं कर सकते हैं। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट मेंशन इन द एसआर बोम्बे जजमेंट ऑफ 1994। इसके अलावा अनदर जजमेंट इज द नबम रेबिया जजमेंट ऑफ 2016, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं विच इज मेंशन इज आर्टिकल 163 वो लिमिटेड हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली यूज करना चाहिए, रेयरली यूज करना चाहिए, उसे हम लोग फैंसीफुल मैनर में या आर्बिट्रेरी मैनर में ना यूज करें। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर्स रोल। विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर द बेसिक क्वेश्चन इज कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे करते हैं, कौन सी बॉडी है, कैसे आप कमेंट करते हैं, कैसे आप रिकमेंड करते हैं, कैसे आप कैंडिडेचर को सेलेक्ट करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 11th अक्टूबर वीडियो, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि रिकमेंड करता है, जो कि मेंशन करता है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या एम्बिग्विटीज़ हैं, इस एम्बिग्विटीज़ को सोल्व करने के लिए कौन से जजमेंट्स हुए हैं ओवर द इयर्स, एंड उन जजमेंट्स में क्या क्या इश्यूज हैं, ऑल दोस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 11th अक्टूबर वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, a critical understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic that is on the Interpol. So यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंटरपोल है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो इंटरपोल क्या है? सो इंटरपोल एक एब्रीविएशन है, क्या चीज का? एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीविएशन को हम लोग कहते हैं इंटरपोल। सो ये क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर क्या करते हैं वो? सो यहाँ पर इंटरपोल जो है वो हर एक मेंबर स्टेट की जो पुलिस हैं उसके साथ मिलजुल कर एक कॉपरेशन के बेसिस पर वर्ल्ड को एक सेफ प्लेस बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो काम करते हैं। और इसके लिए देयर इज वेरियस सब कैटेगरीज और सब ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसके ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? इट इज़ इन दी लियोन, फ्रांस। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1923
जो कि एस्टैब्लिश होते वक्त इसका मकसद ये था कि वो क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन को लाए और असिस्ट करे क्रॉस बॉर्डर पुलिस एसोसिएशन को और एनहांस करने के लिए, कैपेबिलिटी एनहांस करने की मकसद थी इनिशियली। बट ओवर द ईयर्स जो मैंडेट है बढ़ गया है, जो फंक्शनिंग है वो बढ़ गया है। इट हैज़ बीन अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन और इस कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारे सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी सारे सब अथॉरिटीज़ हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरपोल। सो यहाँ पर इंटरपोल में द बेसिक बॉडी इज द जनरल असेंबली। सो जनरल असेंबली इज द गवर्निंग बॉडी जो कि ऑल कंट्रीज साथ मिलते हैं वंस इन ए ईयर, जहाँ पर वो डिसीजंस लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम चलना चाहिए, क्या होना चाहिए मैंडेट। देयर इज अनदर सेक्रेटरीट नॉन एज द जनरल सेक्रेटरीट। तो जनरल सेक्रेटरीट जो है वो डे टू डे वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरपोल के उसे ओवरसी करते हैं। देयर इज दिस एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑल्सो एज वेल एज देयर इज दिस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। सो क्या होता है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो? जो इंटरपोल है और जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच का इंटरलिंक को कहते हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अभी जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इट इज़ नॉट एन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरपोल के अंदर के ही होते हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ब्यूरो इज रन बाय द नेशनल पुलिस ऑफिशियल्स सर। फॉर एग्जांपल अगर इंटरपोल और इंडिया के बीच में दिस एनसीपी इज देयर, देन जो एनसीपी के जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस ही होंगे, इंडियन पुलिस एसोसिएशंस के जो ऑफिशियल्स जो हैं वही रन करेंगे एनसीबी को। और एनसीबी का काम ये होता है कि इंडिया और इंटरपोल के बीच में जो लिंक है उसे बरकरार रखें, जो इन्फॉर्मेशन है उसे बरकरार रखें। तो दैट इज द एम ऑफ दिस एनसीबी। सो विद दैट अब देखते हैं कि इसके ऑपरेशन मॉडल क्या है। सो अगर ऑपरेशनल मॉडल या मॉडस ऑपरेंडी को बात करें, सो अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्राइम्स द इंटरपोल सीज। कौन से क्राइम्स हैं? देयर इज काउंटर टेररिज्म, देयर इज साइबर क्राइम्स एंड देयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम्स। और इसके अलावा इट ऑल्सो वर्क्स ऑन पुलिसिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए भी काम करते हैं। सो कैसे कैपेबिलिटीज? फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, डाटा मैनेजमेंट पुलिस के लिए। फॉर एग्जांपल देयर इज रेड नोटिस जो प्रोवाइड करते हैं, ब्लू नोटिस हैं, येलो नोटिस हैं, पर्पल नोटिस जो कि आगे देखेंगे। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पुलिसिंग कैपेबिलिटीज एज वेल एज देयर इज इनोवेशन को बढ़ाना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्रिमिनल एनालिसिस को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्यूजिटिव इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट। सो इस सब एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, इस सब में एक कोलैबोरेशन लाने के लिए, एक एनहांसिंग कैपेबिलिटीज लाने के लिए द इंटरपोल वर्क्स। अब बात करते हैं ये क्राइम्स के बारे में। सो लेट्स सी दिस क्राइम्स। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो कि इंटरपोल ओवरसी करता है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्राइम इज द काउंटर टेररिज्म, जहां पर ये मेंबर कंट्रीज को असिस्ट करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर पाएं और डिस्टर्ब कर पाए टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड फंडिंग को या एफिलिएटेड ग्रुप्स को वो डिस्टर्ब कर पाए, वो रोक पाए। दैट इज द एम ऑफ इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म एज वन ऑफ द क्राइम प्रोग्राम्स ऑफ इंटरपोल। The second type of crime program is the organized and emerging crimes. So यहाँ पर जो emerging crimes हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल अगर क्रिमिनल नेटवर्क है, दी हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जो कि क्रॉस बॉर्डर चलता है, सो वहाँ पर दिस टाइप ऑफ क्राइम्स, वहाँ पर इंटरपोल कम्स इन। द थर्ड टाइप ऑफ द क्राइम इज दी साइबर क्राइम। सो इट इज़ दी इमर्जिंग फील्ड, जहाँ पर ज़्यादातर जो वारफेयर हैं, जहाँ पर जो भी इश्यूज और अटैक्स हो रहे हैं, दे आर साइबर अटैक्स। सो जो साइबर स्पेस हैं उसे सेफ बनाए ताकि जो मेंबर कंट्रीज है वो अच्छे से कोलैबोरेट कर पाए, वहाँ पर R&D ला पाए, उन्हें कोई इश्यूज ना हो, वो हॉस्टाइल ना हो। इसके लिए साइबर क्राइम इज अनदर प्रोग्राम और crime program that is included in the aspects of Interpol. So these are the 3 types of crimes included in Interpol. With that, अब बात करते हैं कि इंटरपोल कौन से नोटिस निकालते हैं। सो हम लोग ने देखा जब पुलिसिंग कैपेबिलिटीज की बात कर रहे थे, सो वी टॉक्ड अबाउट द पुलिस डाटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इस डाटा मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, इंटीग्रेशन लाने के लिए वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ नोटिस जो कि इंटरपोल इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज रेड नोटिस, जहाँ पर जो वांटेड पर्सनल्स हैं, वांटेड जो पर्सन है उसकी लिस्ट होते हैं। वी आर हैविंग द येलो नोटिस, जहाँ पर जो मिसिंग पर्सन है उसकी नोटिस है, उसकी लिस्ट होती है। वी आर हैविंग ब्लू नोटिस, जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है रेड नोटिस और येलो नोटिस के ऊपर। वी आर हैविंग द ब्लैक नोटिस, जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो है उससे दिखाया जाता है। वी आर हैविंग द ग्रीन नोटिस, जहाँ पर जो वार्निंग्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके जो वार्निंग्स हैं उसे दिखाया जाता है। वी आर हैविंग द ऑरेंज नोटिस, जहाँ पर जो इमिनेंट थ्रेट है उसे शोकेस किया जाता है, उसे हाईलाइट करने के लिए वी आर हैविंग ऑरेंज नोटिस। वी आर हैविंग द पर्पल नोटिस, जहाँ पर मोडस ऑपरेंडी, दैट मीन्स किस बेसिस पर वो वर्क करते हैं, किस बेसिस पर काम करना है उन्हें, कैसे काम करते हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिटर्न इन द पर्पल नोटिस। इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग द इंटरपोल UNSC स्पेशल नोटिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सैंक्शन हैं
उन ग्रुप्स और उन इंडिविजुअल्स के ऊपर एक लिस्ट है, एक नोटिस है, दैट इज नोन एज द इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस. सो विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, नाउ लेट्स मूव to the organization that works between the India and the Interpol. So जैसे हम लोग ने बात किया इंटरपोल और इंडिया के बीच में रिलेशंस के लिए there is this NCB, और NCB के जो members हैं they are CBI members itself. So there is a specialized link of India with the Interpol. So India के behalf में जो एजेंसी हैं जो कि एक्ट करते हैं इन इंटरपोल, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं विद इंटरपोल मेंबर्स, इज दी CBI. और CBI के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, CBI क्या हैं, CBI क्यों फॉर्म हुआ था, CBI के हिस्टोरिकल कॉन्टेशंस क्या हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि CBI में लाए जा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड in our 11th October video itself. So please refer to the video so that you have a critical understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the Defense Expo, जहाँ पर particularly बात करेंगे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में. So let's see कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग क्या है. So let's start with the basics. So जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, ये एक डायलॉग है जहाँ पर इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो डिफेंस के पर्टिकुलरली डिफेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. सो इसका जो थीम है ऑफ द IADD डायलॉग ऑफ 2022, इसका जो थीम है दैट इज इंडिया अफ्रीका adopting strategy for synergizing and strengthening defense and security cooperation. So that is the theme of IADD 2022. अब बात करते हैं ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है IADD का वो क्या है. सो जब भी बात करते हैं इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस कॉपरेशन के बीच में या इंडिया और अफ्रीका के कॉपरेशन के बीच में, सो देयर इज अ बेसिक प्रिंसिपल नॉन एज द कंपाला प्रिंसिपल. अब ये जो कंपाला प्रिंसिपल है दैट वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2018 इटसेल्फ. अब कंपाला प्रिंसिपल का मतलब ये कि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसकी एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल्स हैं उसे हम लोग एनहांस करेंगे ताकि वो जो नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं उसे फुलफिल कर पाएं. तो दैट इज द बेसिस ऑफ द कंपाला प्रिंसिपल, एंड कंपाला प्रिंसिपल इज गाइडिंग द इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस. विद दैट अब देखते हैं इंडिया और अफ्रीका का जो कॉपरेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था. सो इंडिया और अफ्रीका के जो डिफेंस कॉपरेशन है इट स्टार्टेड इन द ईयर 1956, जब द किंग दी देन किंग एम्परर हेल सेली जिन्होंने सजेस्ट किया था, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, दी देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट किया था कि वो ओपन करे अफ्रीका में आवर इंडियाज फर्स्ट एवर ओवरसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. और इसी के बेसिस पर ओवर द ईयर्स जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बढ़ा है. And as of now, we are having very good bilateral relations with most of the countries of the African continent. अब ये जो इंडिया अफ्रीका जो डायलॉग है, डिफेंस डायलॉग जो है, इट स्टार्टेड इन द ईयर 2020. जो फर्स्ट एवर डायलॉग था दैट वाज हेल्ड इन लखनऊ, और इसीलिए इस डायलॉग से निकल के आया लखनऊ डिक्लेरेशन, और लखनऊ डिक्लेरेशन के कंटिन्यूएशन में ही IADD 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड. अब यहाँ पर जो मैंडेट है, द मैंडेट हियर इज टू हैव म्यूचुअल एंगेजमेंट एंड कन्वर्जेंस इन द एरिया ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म. अब इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द मनोहर पारिकर IDSA. सो इंडिया का जो IDSA है नॉन एज द मनोहर पारिकर IDSA हु इज हैविंग इट्स ऑफिसेस इन दिल्ली इटसेल्फ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड बी होस्टिंग दिस IADD 2022. With that clarity in mind, now let's see our first article, that is on the multi-dimensional poverty. Now multi-dimensional poverty is a very important topic. So again basic से start करते हैं. So क्या है multi-dimensional poverty index? So it is an index जहाँ पर it is an international measure जो क्या करते हैं, जो acute मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कवर करते हैं इन ओवर 100 डेवलपिंग कंट्रीज. सो 100 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखते हैं, उसे एसेस करते हैं, उसे ट्रेस करते हैं, एंड दैट इंडेक्स इज नॉन एज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और पर्टिकुलरली द ग्लोबल MPI. अब यहाँ पर इस पॉवर्टी को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के लिए देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस हियर. दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर UNDP, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर इस इंडेक्स को लॉन्च करते हैं और हर साल वो निकालते हैं. अब जहाँ पर इनका मकसद है कि पॉवर्टी को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें, उसे एसेस करें, उसे ट्रेस करें, और इसके लिए देयर इज वेरियस डायमेंशंस टू द पॉवर्टी हियर. सो यहाँ पर बेसिकली 3 डायमेंशंस है पॉवर्टी के. देयर इज हेल्थ, देयर इज एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब हर एक डायमेंशन के अंदर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी हैं. सो इंडिकेटर्स के वेटेज को समझते हैं. सो जैसे मैंने कहा
दिस MPI को मेजर करने के लिए काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं. देयर इज दिस हेल्थ डायमेंशन, देयर इज दिस एजुकेशन डायमेंशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. अब क्योंकि ये जो हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और इसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि इन डायमेंशंस के अंदर आते हैं और हर एक इंडिकेटर के एक स्पेसिफिक वेटेजेस हैं. सो लेट्स सी कि कौन से वेटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की बात करें सो हेल्थ में है आवर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी और यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी को स्पेसिफिक वेटेज दिया गया है और वहाँ पर देयर इज अ करस्पॉन्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि फुलफिल होता है इससे. अगर हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वहाँ पर देयर इज कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट्स है, हाउसिंग है, जहाँ पर सब एक एस्पेक्ट को, सब एक इंडिकेटर को स्पेसिफिक वेटेज दिया गया है. अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है जो कि मेजर करते हैं. सो हर एक एस्पेक्ट को कंट्री स्पेसिफिक हम लोग मेजर करते हैं, उसे हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं. इस वेटेज के अकॉर्डिंगली हम लोग सम करके मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट टोटल वैल्यू गिव्स अस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ ए कंट्री. अब बात करते हैं पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ द ईयर 2022. सो 2022 की बात करें सो हर एक ईयर जब भी MPI निकलता है सो देयर इज अ थीम फॉर दैट. सो 2022 का जो रिपोर्ट है वहां पर द थीम इज अनपैकिंग डिप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. सो दैट इज द थीम ऑफ MPI 2022. अब देखते हैं फ्यू टेक अवेज ऑफ दिस रिपोर्ट. द फर्स्ट टेक अवे इज कि इंडिया में अराउंड 415 मिलियन पीपल हैव come out of the poverty in the time range of 2005-6 to 2019-21. So 2005 से 2019 तक around 415 million people, that means around 41.5 crore people has come out of poverty. अब इन 41.5 crore people में से around 1.4 crore people जो हैं they come out of this poverty in the time range of 2015-19 to 2019-2021. So 2015 से लेकर 2019 तक around 140 million people, that means 1.4 crore people has come out of the poverty. That is something that we need to understand. That means India has done very good when with respect to the poverty elimination. But यहाँ पर और भी काफ़ी सारे डायमेंशन हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसके बेसिस पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 1.2 दैट मेजर्स दैट द एस्पेक्ट इज टू reduce at least half of the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all the dimensions according to the national division by 2030. ये जो प्रोग्रेस है, ये जो मिशन है, ये जो टारगेट है, ये हम लोग अचीव कर पाएंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्क द इंडिया हैज डन ओवर द ईयर्स. सो इंडिया के प्रोग्रेस को देखकर ये जो गोल है दैट इज गोल SDG 1.2, ये जो गोल है ये हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, ऐसे UNDP और OHDI का अनुमान है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इसके अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें, पॉवर्टी एज सच अगर बात करें तो वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन अकाउंट्स टू अराउंड 90% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन. सो यहाँ पर द रूरल एरियाज अकाउंट टू अराउंड 90% ऑफ द पुअर पीपल. दैट मीन्स अगर हम लोग को पॉवर्टी एलिमिनेट करना है देन आवर फोकस शुड बी रूरल एरियाज. Another point here कि रूरल एरियाज में भी जो एज ग्रुप हैं, द एज ग्रुप इज इज चिल्ड्रन. सो अमॉन्ग दिस पुअर पीपल अराउंड 1 out of 5 चिल्ड्रन इज पुअर. दैट मीन्स अगर हम लोग को पॉवर्टी एलिमिनेट करना है सो हमें चिल्ड्रंस में और रूरल एरियाज में स्पेशल फोकस देना होगा, स्पेशल इनिशिएटिव्स लाने होंगे. Another point here is based on the इंडिकेटर्स. सो जैसे हम लोग ने देखा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं और अगर इंडिकेटर्स को कंट्री स्पेसिफिक ना डिवाइड करके हम लोग ओवर द कंट्री स्पैन वर्ल्ड अगर कंपेयर करें सो इट फाइंडिंग कि जो पुअर कंट्रीज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिप्राइवेशन है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द कुकिंग, फ्यूल एंड हाउसिंग. And the second most deprived aspect is in nutrition and sanitation. So that means cooking, fuel और housing as well as nutrition और sanitation में काफ़ी सारे ज़्यादा वर्क्स करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम कर पाएँ. Another important point is with respect to the works. अगर हम लोग वर्क स्पेसिफिकली बात करें इंडियन स्टेट्स में तो जो सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दे हैव डन फेयरली वेल इन कंपैरिजन टू स्टेट्स लाइक केरला एंड दिल्ली. So that is another thing which we can find out of the MPI 2022. With that clarity in mind, now let's see our quiz of the day. So the first question is regarding the soil health card scheme. The second question is regarding the Unnat Bharat Abhiyan. Again, both these questions are previous year questions. So इन questions को attempt करें और जो इन questions के answers हैं
along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. As well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in video's description, as well as in our Telegram group. So I hope you guys have joined Telegram group. If you haven't done so, do join urgently. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.